Hello everyone, welcome to the podcast with Bakhtiyar, and today we have the LinkedIn wizard, Yogesh Agarwal in house. Thank you so much, Yogesh, for coming and joining us. And this will be a session where you will learn about how someone switched from sales, marketing, brand building, and whatnot. So he's also a keynote speaker in many of the IIMs, I say, and other major institutes. So welcome, Yogesh. Welcome to our show. Thank you so much, Bhaktiar. Great to be here. And I'm glad that you're doing such a show and introducing people like this. And that was a great introduction indeed. Thank you and looking forward to have some conversation. So, Yogesh, tell me something about like when you started and how you like landed, because seems like I've seen your LinkedIn profile and all, and too much experience, bro. So how things went well and where it doesn't went well, so you switched here and there, because you, as in the your bio also, you said I've switched many things, but something but my aim is same. So how you did all Yeah. that? So I think so. If you come about, the aim part first of all. Okay. So the aim was always to earn a lot of money and become famous as well. For me, fame and money both came hand in hand. Hmm. When you talked about the different jobs I switched, so basically I get bored with one skill very easily. Like I do not want to go too deep into one thing and just do it all my life. I'm more of a generalist than specialist. Hmm. So I know a bit of branding, I know a bit of marketing, I know sales. Sales I have known for the longest time. And Hmm. then right now I'm learning graphic designing, leadership, and a lot Oh, of those things as well. So the point is that I keep on changing my domain, and my next domain probably, which I'm announcing here, will be into copywriting, wherein we okay. will be doing sales through writing. So copywriting, email campaigns, offer Hmm. creation, and all those things. Because again, I'm quite bored of this personal branding things. Everybody is doing it right now. When you talk about the back of the life, I think so. It started back when I was in college and I moved out of my city. So I belong from a very small town, which is 200 kilometers from Calcutta. Hmm. तो यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपकी डेवलपमेंट होगी। तो 200 किलोमीटर दूर कैलकाटा जाते हैं। सो वहां पे सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड क्या करना है। तो आई टुक क्या, चलो ठीक है सीए कर लेते हैं। देन सीए वर्कआउट नहीं किया, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ सीए। एंड देन प्रोबेबली आई स्टार्टेड वर्किंग विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड पीपल, एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहां से आने लगा। बट अगेन वो कंफ्यूजन कभी गया ही नहीं था कि करना क्या है। दैट वाज ऑलवेज देयर बिकॉज माय माइंड इज समथिंग, वो भागते रहता है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। सो दैट इज द रीजन आई थिंक सो कि मैंने ये चीज चूज किया कि यार चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो अब एक स्टेबल जर्नी ढूंढते हैं। तो आफ्टर Hmm. कॉलेज में मैंने एनजीओ ज्वाइन किया था और कुछ कैंपसिंग एक्टिविटी की आईआईटीज एंड आईएम्स में। तो वो Hmm. नेटवर्किंग पार्ट मेरा काफी स्ट्रांग हो गया। मतलब कैसे लोगों से मिलना है, बात करना है, उनको कन्विंस कर लेना है। और Hmm. तो पहली जॉब ऐसे ही लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग से लगी थी। एंड उसके Hmm. बाद जाके नेक्स्ट जॉब जो लगी थी वो भी नेटवर्किंग के थ्रू लगी थी। वो भी मैं आईएम गया हुआ था, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे बाहर के एमबीए कॉलेज से। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि ये कंपनी में अप्लाई कर दे। देन उन्होंने बाइजूस के बारे में बताया एंड देन आई वेंट इनटू बाइजूस। सो मेरे को लगता है कि अ, मेरे लिए जो भी अभी चीजें रही आउटकम, वो बाई प्रोडक्ट रहा है एक ही चीज का, वो है नेटवर्किंग। मतलब मेरी Hmm. स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है नेटवर्किंग, और उससे जो भी चीज निकल के आती है वो सारी चीजें आप देखते हैं इंटरनेट पे, है ना। Hmm. एंड प्रोबेबली नेटवर्किंग इज द रीजन वी आर सिटिंग टुगेदर। Yes, true, true, true. So, networking said you said networking. So, networking आपने IIM में की. So, how you got from networking to like keynote speaker in IIMs? क्वेश्चन को लगता है कि वो सबसे पहला जो step था आईएम में, वहां जाते ही एक फील आई थी सबसे पहले ये चीज के यार, मतलब ऐसा क्या है वहां पर अलग सा, दैट मैं वहां Hmm. पर जाते ही एकदम एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि दो स्टूडेंट्स आर वेरी डिफरेंट। एंड Hmm. वो मन कर गया था कि वहां जाना है, बट ये पता था कि यार कैट अब से क्लियर होगा नहीं और उतनी मेहनत अपन करेंगे नहीं। तो आई वॉज Hmm. अ पार्ट ऑफ एनजीओ व्हेन आई वेंट टू आईएम फॉर द फर्स्ट टाइम। और Okay. जब मैं वो एनजीओ के थ्रू गया था,
तो मेरे को फर्स्ट कॉल आया वहां से कि आफ्टर एनजीओ में अच्छी एक्टिविटी की, दे कॉल्ड मी दैट एक वर्कशॉप करा रहे हैं हम लोग, इफ यू वेर एबल टू प्रमोट द वर्कशॉप इन योर कॉलेज यू विल बी गेटिंग सो एंड हाँ, सो अमाउंट। ओके। ठीक है, तो जब ये चीज आई तो मैंने बोला ठीक है चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां से ही ये जर्नी शुरू हुई। फिर वो वर्कशॉप प्रमोशन इतना अच्छा हुआ, इतने से पार्टिसिपेट किया, that he started knowing me that हाँ यार अच्छा बंदा है, काम अच्छा करता है and all. Then हम्म after अभी जब मैं वापस I started becoming a kind of influencer और ये सब चीज में जब आने लगा, then I हम्म approached IIM again कि यार ठीक है, we have collaborated past in this and आज के टाइम में तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, let's give it for the student, let's do it. तो उसी टाइम पे while networking with them again they got me inside, क्या ठीक है आप आइए, आप you give a training. So that's the beautiful advantage that you can connect the dots क्योंकि इसको पता है कि ओ पहले आके ये लोग इतनी बड़े बड़े एक्टिविटीज कर चुके हैं, तो उन लोगों को कोई सेकंड थॉट ही नहीं आया कि नहीं यार इसको क्यों नहीं बुलाना चाहिए। दे वर वेरी हैप्पी कि हम्म चलो ठीक है आओ करो। सो दैट इज आई वेंट इनटू आईएम एज अ स्पीकर एंड मेरा पहला गिग आईआईटी धनबाद में था, फिर आईएम कलकत्ता में हुआ। ओके। सो अभी आपने कितने मेजर इंस्टीट्यूट्स कवर कर रखे हैं? नेम फ्यू मेजर लाइक। इंस्टीट्यूट्स मैंने आईआईटी खड़गपुर कवर किया हुआ है, आईआईटी धनबाद, हम्म IIM Calcutta, Shri Ram College of Commerce, हम्म Lady Shri Ram College, शिवाजी हम्म कॉलेज, MSIT हम्म। दिल्ली, ये सारे कॉलेज कवर्ड है मेरे। वो बचता क्या फिर मैप पर? बहुत बचता है भाई, अभी अभी IIM अहमदाबाद सबसे पहले लिस्ट पे यार, उस पे जाना है। IIM आईआईटी बॉम्बे। अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIT बॉम्बे, ये सब बचे हैं और इस पे जाएंगे तो कुछ तबाही मचा के आएंगे, तो कर रहे हैं काम यार, होगा वो भी बुलाएंगे, खुद से सामने से हाँ। बुलाएंगे। अच्छा, नेटवर्किंग से आपने बहुत कुछ लेवरेज किया। सो हम्म कैन यू टेल हाउ टू एनहांस योर नेटवर्क? सबके पास लिंक्डइन अकाउंट फ्री में बन जाता है, उसको हम्म लेवरेज कैसे करते हैं? यार देखो, लिंक्डइन अकाउंट सबके पास है, लोगों को कॉमन सेंस है, बट वो कॉमन सेंस ही कॉमन नहीं है आजकल। जैसे एग्जांपल ले लो, तुम नॉर्मल वर्ल्ड में हो, वहां पर क्या होता है कि यू आर सिटिंग इन अ लाइक गुड ड्रेस, चेहरा अच्छे से धो के आए हो, कहीं पर किसी से मिलने जा रहे हो, तो इतना सेंस है तुमको। बट वही जब आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को बनाते हो तो डीपी नहीं डाल रहे हो, या डीपी डाल दिए कहाँ पिछड़ा कहीं खड़े हुए वो, तो आप जो अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड में तैयार करते हो तो आपसे लोग बात करने को तैयार होते हैं, तो वैसे ऑनलाइन वर्ल्ड में भी पहले आपको अपने प्रोफाइल को ऐसा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम्म आपको देखे नहीं है कभी, तो हाउ विल दे कम एंड इंटरेक्ट विद यू। सो योर प्रोफाइल इज दैट ड्रेस दैट यू वियर, है ना। उसके हम्म बाद जाके आपके प्रोफाइल में जो लिखी हुई है चीज है, आप देखो प्रोफाइल में बहुत चीज लिखते हैं हम अबाउट ये, तो वो आपके वर्ड्स हैं। जब आप देखो क्या होता है ना, इसको 10-10 रूल, 10-10-10 रूल बोलते हैं, कि कोई इंसान जब आपसे 10 मीटर की दूरी पे होता है तो हम्म वो सबसे पहले आपके ड्रेस नोटिस करता है दूर से, कि भाई ये आदमी हम्म शावी है तो नहीं जाऊंगा, इसके पास अच्छा है तो जाऊंगा। वही सेम चीज हम्म हो जाती है आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी होती है तो लोग सबसे पहले नोटिस करके आते प्रोफाइल में। जब हम्म इंसान आ जाता है उससे और करीब, यानी कि हम्म करीबन 10 फीट की दूरी पे होता है, तो वो सबसे पहले आपकी हम्म बॉडी लैंग्वेज देखता है कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है कि नहीं, बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम्म वो आपका बॉडी लैंग्वेज हो जाता है कि जो आप प्रोफाइल में लिख के रखें, अपना पूरा भर के रखें राइटिंग्स, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। और रियल वर्ल्ड में जो लास्ट 10 होता है, वो 10 होता है 10 वर्ड्स, जो आपके पहले 10 मुंह से शब्द निकलते हैं, उसके उस पे लोग जज कर जाते हैं आपको कि यार ये बंदा कैसा है। आपकी आवाज, आपका टोनैलिटी सबसे जज हो जाता है। तो आप समझो लिंक्डइन पे वो चीज होती है आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट वो अच्छा है ना, वो पहला हुक अगर वो अच्छा है, अगर वो पहला 10 कंटेंट उनको अच्छा लगा, तो ऑटोमेटिकली वहां से जजमेंट आ जाती है। तो ये चीज अगर लोग करने लग जाए तो आधा काम तो वहीं सॉल्व हो जाए, मेरे को लगता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10-10 रूल मैं यहाँ भी फॉलो करता हूँ, 10-10-10, वो 10-10-10 रूल यहाँ भी फॉलो होता है। दिस इज द मेजर हम्म। डिफरेंस। See, I've written many things in your profile, so something उसमें ही से मैंने उठाया कि हम्म which brands you have given, like brands or personalities you have given consultancy regarding this, like which one is your biggest one, if you can name? यार देखो, घोस्ट राइटिंग प्रोजेक्ट तो ऐसा होता है कि जिसमें हम बताते नहीं है, एनडीए होता है। हम्म बट हम्म
मैं इतना बता सकता हूँ, एक पर्सन के साथ मैंने काम किया है जो सत्या नाडेला को जानते हैं हम लोग, सीईओ ऑफ हम्म। माइक्रोसॉफ्ट। तो हम्म। सत्या नाडेला उनका रिपोर्टिंग मैनेजर था। सो दैट इज वन क्लाइंट, ठीक है। हम्म। सेकंड जो क्लाइंट रहे हैं वो है मतलब वो फिटनेस एक्सपर्ट रही हैं। उनके हम्म। साथ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, मिस इंडिया अर्थ रह चुकी हैं पहले, और काफी कुछ है, मतलब एक सर्टेन ईयर में, ईयर नेम नहीं कर सकता बट। तो घोस्ट हम्म। राइटिंग प्रोजेक्ट में हमारा एनडीए साइन होता है कि नॉन डिस्क्लोजर या एग्रीमेंट हाँ। मैंने किसके साथ किया है। तो इनके साथ भी अभी काम चल रहा है। तो कहने का हम्म। अर्थ यही है कि काफी बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ काम किया। ब्रांड कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो यार डीटो के साथ ब्रांड कोलैबोरेशंस हुए हैं, और ये तो ब्रांड कोलैबोरेशंस आते रहते हैं। तो हाईरेक्ट के साथ हम्म। हुए हैं पहले, टीटीएस के साथ हुए हैं। लॉट ऑफ दोज ब्रांड कोलैबोरेशंस हैव बीन डन इन द पास्ट, मल्टीपल ऐप के साथ हुए हैं। तो वो ब्रांड कोलैबोरेशन हुए हैं। अगर स्पेसिफिकली आप पर्सनालिटी की बात करो तो ये कुछ पर्सनालिटीज है। बाकी अगर हाई रेंज की बात करो कि यार कोई आप, तो अभी फिलहाल मेरा फोकस है, मतलब बहुत लोग हैं, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो IIM IIT से पढ़े हुए हैं, वो सब कंसल्टिंग लेते रहते हैं। एंड आप देख सकते हैं मैं रिकमेंडेशन में लिख के गए हैं वो सारे लोग जिन्होंने भी ऐसे कंसल्टिंग ली है। हम्म। बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स रहे हैं जो कि बड़े बड़े ग्रुप, तोलाराम ग्रुप में काम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग कंपनी इन अफ्रीका बेस्ड आउट हम्म। ऑफ इंडिया। सो दोज या कंपनीज से भी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है वो भी मेरे क्लाइंट रहे हैं। तो ये मेरा क्लाइंटेल रहा है। ओके। हम्म। जब अभी मैं एक बहुत डिफरेंट टेंजेंट पे आने वाला हूँ क्वेश्चन के, क्योंकि आपने कुछ मेरे हम्म। को भी बोला था। हम्म। यू सेड यू लेफ्ट सीए एंड जॉइन ऑल अदर स्टफ। हम्म। कभी गिल्ट होता है सीए छोड़ने का? नहीं यार वो गिल्ट कभी नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ रीजन। देखो क्या है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत थी सीए बनने के साथ कि हम्म। देखो पढ़ाई करते हैं इतना, बन भी जाते हैं, बट उसके बाद भी जो हम्म। मैं काम कर रहा होता वो काम कहीं ना कहीं वहां पर बहुत इंडिपेंडेंसी नहीं आ रही है यार। आज के टाइम पे हर कोई उसमें घुसा पड़ा है, हर कोई वो सीए बनना चाह रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि वो मार्केट डिफरेंशिएशन आ नहीं पाती है। और हम्म। सेकंड चीज, मेरे को एक बहुत बड़ा चीज फील होता है कि यार देखो, मेरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही ऑनर्स हुई हुई है, मतलब मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हुआ है। बट आज तक उसके रिलेटेड मैंने कोई जॉब नहीं किया है। तो आई वॉज ऑलवेज अ हम्म। वेरी आउटस्पोकन गाय, बट वेन यू सी द चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली, लाइक अभी हम्म। थोड़ा सा बदल रहा है नैरेटिव। अभी चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट्स लिंक्डइन पे छाए हुए हैं। दे आर समवन हु हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट, मेकिंग कंटेंट। बट ये नहीं होता था पहले दोस्त। पहले ऐसा नहीं था। हम्म। पहले क्या होता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वेयर कंसिडर्ड कि नहीं भाई बहुत सीरियस बंदा है, ये बैठेगा काम करेगा, मेरा जीएसटी फाइल करेगा, फलाना चीज करेगा। तो अभी नैरेटिव चेंज हो रहा है, बट मेरे को कभी रिग्रेट नहीं। वहां ये रहता है कि सीए योगेश अग्रवाल लिखा होता तो फॉलोअर्स ज्यादा होते, क्योंकि सीए के फॉलोअर्स अब भरे पड़े। लिंक्डइन वाले सीए लगाए थे आगे और फॉलोअर्स आ जाते उनके तो ये एक दुख होता है जरूर, उसके अलावा कोई दुख नहीं है। जो बात है ओके। क्लियर यार। आप देखो सीए के बारे में पोस्ट बनाओ, देखो आपको कितने लाइक्स मिलते हैं। मैंने ट्राई टेस्ट किया मैं काफी एक्सपेरिमेंटिंग है। हाँ बेस्ट वे यार। मेरे को सब लोग बता के जाते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती है, और सबसे एक्टिव कम्युनिटी है एक्चुअली ये लिंक्डइन पे हाँ। काफी, इस कारण से। हाँ जी। सो कोई आप जैसे मतलब इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर, अगर कुछ कभी मन बना तो क्या पढ़ना चाहते हो? किस फील्ड यार में, मतलब क्या डिग्री करना चाहते हो? मेरे को ना ये कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है और मार्केटिंग साइकोलॉजी पढ़नी है। सो आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। हम्म। एंड्रयू हबरमैन की भी मैं वीडियोस देखता हूँ, और मेरे को क्या है ना कि आई हैव एन हैबिट कि यार मेरे को अपना ब्रेन पे कुछ रखना पसंद नहीं है। मतलब आप तुम देखोगे कि तुम ऐसे कुछ भी नॉलेज मांगोगे तो हमेशा यहाँ पर नहीं रहता है। आई हैव अ सेकंड ब्रेन दैट आई हैव मेड। और बेसिकली एक बुक भी पढ़ी थी, बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन बाय थियागो फोर्टे। तो यार देखो, मैं इसको एकदम सोचने के लिए रखता हूँ। बाकी जितने रिसोर्सेस है, बाकी सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें क्या करता हूँ मैं, एक जैसे नोशन डेक बना के रखा है, नोशन फाइल बना के रखा है, उसमें सब डाल के रखता हूँ। तो मेरे को आगे हम्म। जाके कुछ अगर पढ़ना है, समझना है, तो कंज्यूमर बिहेवियर मेरे को बहुत पसंद है। मार्केटिंग रिलेटेड जो आज के, मतलब मार्केटिंग में न्यूरो मार्केटिंग एक चीज होती है, वो न्यूरो ओके। मार्केटिंग मेरे को पढ़ना है। फिर लीडरशिप, सो आई एम फॉन्ड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स मोर देन हार्ड स्किल्स। ठीक है, तो हम्म। इसीलिए मेरी आगे की जो भी पढ़ाई होगी, और मैं क्योंकि क्रिएटिविटी में थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसी कारण हम्म। से मैं इन सब चीजों में ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। मैं मतलब टू बी फ्रैंक, अभी जो मेरे कोर्सेज दो चल रहे हैं, वो एक ग्राफिक डिजाइनिंग पे चल रहा है यूडेमी से, अच्छा। और एक
फिलहाल इससे चल रहा है, कॉपी राइटिंग पे चल रहा है, फिर ईमेल कॉपी राइटिंग एंड कैंपेनिंग में मैं पढ़ने वाला हूँ। तो आई कीप ऑन अपस्किलिंग, मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी मैं कंप्यूटर के सामने करीबन 12 से 16 घंटे बैठता हूँ भाई, रोज। तो दैट्स द हम्म, काइंड ऑफ तो वर्क आई डू। अब यूडेमी पर भी हो? हाँ, यूडेमी पे पढ़ाई करते हैं, मतलब अच्छा, कोर्स नहीं। पढ़ाई करते हैं, और अच्छा हमें लगा करते हैं, कोर्स है। पढ़ाते नहीं है। बना लेंगे वो भी जल्दी, चिंता मत करिए। अच्छा, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग सोली और यू हैव अ टीम? आई डोंट हैव अ टीम। मेरे पास मतलब कुछ अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो प्रोजेक्ट बेसिस पे मैं हायर करता हूँ। मतलब मेरे को अगर ग्राफिक डिजाइनर की हम्म रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चला तो उसके लिए हायर कर लिया, उसको बता दिया फलाना प्राइस है, एंड देन वी जस्ट हम्म क्लोज द डील लाइक दिस। क्योंकि हम्म सी, ये जो इंडस्ट्री है अभी बहुत ही स्टेबल नहीं है। लीड्स का फ्लो हम्म आप लिंक्डइन से कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है, तो आप इमेजिन नहीं हम्म कर सकते। तो लाइक वंस आई स्टार्ट मूविंग इट टू मोर, क्योंकि देखो किसी किसी मंथ बहुत अच्छा अच्छा पैसा आ रहा है, किसी मंथ नहीं आ रहा है, तो वो हम्म सैलरी देना और सब कुछ देना बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो दैट इज द रीजन मैं करेक्ट। फोकस इसी बात पे रहता हूँ कि डेलीगेट कर देते हैं जो भी वर्क आता है प्रोजेक्ट बेसिस पे, हम्म सोली काम करते हैं। एंड हैप्पी टू वर्क सोली, बिकॉज टेंशन नहीं रहता है कि कोई है जिसके लिए सोचना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। बट यस, हम खुद ही आगे हैं। जाके टीम जरूर डेवलप करेंगे, हम खुद ही है भाई। और अब एआई के जमाने में मेरे को लगता नहीं की जरूरत है, अगर सिस्टम्स बना लो अच्छे से, इट बिकम्स हाँ वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज ऑल द थिंग्स। हाँ, इफ यू नो द राइट टूल्स यू नो एवरीथिंग नाउ। या करेक्ट है, राइट। करेक्ट है। एंड तो आप जो मतलब सारी चीजें सोली मैनेज करते हो, 16 आवर्स यू स्पेंट ऑन सिस्टम, सो लीड्स आपकी सिर्फ लिंक्डइन से आ रही हैं या कहीं और से भी आ रही हैं? कहीं और से नहीं आती है, लिंक्डइन से ही आती है। और मैं हाई टिकट खेलता हूँ, मेरे को आदत ही नहीं है कोई मेरे को, जैसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे मैं अपनी कंपनी में था बाइजूस में, तो वहां पर हमारा टिकट साइज करीबन 30,000 से शुरू होता था और वेरी करता था 2 लाख 3 लाख तक भी। तो मेरे हम्म को याद है हाईएस्ट क्लोजिंग मैंने, जब मैं खुद एक एसोसिएट था तब 2 लाख की थी, और जब मैं मैनेजर बन गया तब मेरी टीम ने 2.5 3 लाख की भी क्लोजिंग की हुई है। तो हम्म कहने का अर्थ यह है कि मैं देखता हूँ कि वही 3 घंटे में जब आदमी 3 लाख उठा सकता है इंस्टेड ऑफ 30,000, कोई पॉइंट नहीं बनता। तो एक एग्जांपल हम्म ले लेते हैं, अगर कि जैसे मेरा मंथ अगर स्टार्ट हुआ, तो मंथ स्टार्ट हम्म होते अगर मैंने 5 6 हाई टिकट क्लोज कर लिए कंसल्टेशन और मेरे लाख रुपए बन गए, तो हम्म यार वो मेरे मंथ की स्टार्टिंग में बन गया, पूरा मंथ मैं चिल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, और हम्म अगर मैं चाहूँ तो आगे के लिए जमा कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट माय थिंकिंग इज। तो मेरे लिए लिंक्डइन से ही लीड आती है, मैं जो कंटेंट बनाता हूँ उससे लीड आती है इनबाउंड। मैंने अभी तक आउटरीच शुरू नहीं की है। मेरे जितने आज तक लीड्स आए हैं, जो भी मैं सीआरएम मेंटेन करता हूँ, वो हम्म पर्टिकुलरली सारे के सारे इनबाउंड आते हैं। मैंने आज तक आउटरीच करके एक भी क्लाइंट नहीं उठाया है अभी तक तो। ओके। सो लिंक्डइन पे आप कितना टाइम से हो? यार लास्ट, मतलब एक्टिवली चालू किया है मैंने टाइम से, नवंबर 2022 ओके। एक्टिवली कंटेंट बनाना। उसके पहले ऑन एंड ऑफ चल रहा था, बीच में क्या 2 दिन पोस्ट कर दिया फिर छोड़ दिया। तो अगस्त से ऑन हम्म एंड ऑफ था, और नवंबर से काफी डिलीजेंटली कंटेंट बनाना चालू किया। बीच में थोड़ा सा गैप आया था, बट अभी तो अच्छा कंसिस्टेंट कोशिश कर रहे हैं बनाने की, थोड़ा मोड़ा गैप आता है बीच में। सो मेरे को लगता है नवंबर से आप ही काउंट कर लो, आप 8 महीने करीबन हो गए ऑलमोस्ट। हम्म। अच्छा, आप जैसे पर्सनल ब्रांडिंग साइड पे भी हो, यू आर स्पीकर टू, मजा किसमें ज्यादा आता स्पीकिंग विदाउट एनी डाउट। है? मेरे को अगर क्लाइंट का काम भी आता है गोस्ट राइटिंग का, तो उससे ज्यादा मेरे मेरे को मजा आता है वन ऑन वन कंसल्टिंग में। क्योंकि पता है कि यार मैं 2 घंटा बैठूंगा, उसको मैं बताऊंगा कि क्या उसके लिए जरूरी है, मेरा काम हो गया। मतलब देखो, एक बिलगेट्स का एक कोट बहुत पहले आया था, पता नहीं बिलगेट्स ने लिखा है किसने लिखा, कि यार एक लेजी आदमी को बहुत अच्छे से पता रहता है कि उस काम को कम से कम समय में कैसे करेंगे या इजी तरीके से कैसे करेंगे। तो मैं वो लेजी आदमी हूँ। मेरे को देख के तुम देख रहे हो 15 16 घंटा ये काम करा है भाई, बट वो 15 16 घंटा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को मजा आ रहा है वो चीज करके। फ्रैंकली, जैसे हम्म सोचो ये मेरी जैसे डायरी है, अब इसमें तुम देखोगे जैसे ये मेरे आज की टू डू है सारी, जिसमें तुम्हारा भी लिखा हुआ है कि यार आज मेरे को तुम्हारे साथ मीटिंग करनी थी एग्जाम्पल। हम्म तो हम्म ये मैं टिक करते रहता हूँ, और ये मेरे को एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देता है। पहले मैं नहीं करता था, अब मैं करने लग गया। इससे क्या होता है कि मेरे को पता है कि भाई 20 काम थे तो 20 में मेरे 10 काम पूरे हो गए। इट गिव्स मी अ हम्म सेंस ऑफ अकम्पलिश, और जो नहीं होता है ठीक उसको मैं नेक्स्ट दिन पास ऑन कर देता हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम। तो मेरे को लगता है यार बख्तियार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि यार
देखो मजा आता है और उसमें पैसा आता है तो वो उससे बड़ा बेस्ट काम कुछ नहीं है। बट स्पीकिंग में इंडिया में कौन पैसा दे रहा है? सोच के देखो। कॉर्पोरेट में भले ही भाई तुम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए पैसा उठा सकते हो, है ना, बट मतलब देर आर, अभी मैं रिसेंटली बात चल रहा है, हुंडई विल बी इनवाइटिंग मी फॉर अ कॉर्पोरेट सेशन इन सेल्स। वो सेल्स से हम्म रिलेटेड रहेगा। तो वहां चार्जेस विल बी देयर एंड एवरीथिंग विल बी देयर, बट कॉर्पोरेट्स पे करते हैं। कॉलेजेस आर यार, बात कर लो बच्चों से, बोलेंगे सर वी आर अ स्टूडेंट अथॉरिटी, सो वी डोंट हैव अ बजट फॉर दिस। अरे ठीक है भाई, आओ कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो वही है, अभी एसआरसीसी में एक और वर्चुअल इवेंट है जो आने वाला है अगस्त में। तो हम्म ऐसे ही होते हैं ये सब इवेंट, कुछ कुछ में होते हैं पेमेंट्स होते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मजे के लिए वो करूँ, बाकी पैसा कमाने के लिए तो विल हैव टू वर्क एनी हाउ। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आप पर्सनल ब्रांडिंग भी मैनेज करते हो, पर्सनल ब्रांडिंग में आपको कैसे सुनने को मिले कुछ मिसकंसेप्शंस जो लोगों के माइंड में? तो यार पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है कि फॉलोअर्स सिर्फ बढ़ा लेने से ब्रांडिंग हो जाती है। यू एंड आई बोथ नो सच सर्टेन एग्जांपल्स वेयर इन फॉलोअर्स आर देयर और कुछ फायदा नहीं है उन फॉलोअर्स का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रांडिंग से ज्यादा आपकी पोजिशनिंग कैसी है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉलोअर से ज्यादा आपकी पोजिशनिंग कैसी है वो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो पोजिशनिंग हम्म को लेके आओ कि आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो उसकी अथॉरिटी हम्म कितनी मार्केट में है, लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो कैसे हैं। फॉलोअर्स हार्डली मैटर करते हैं भाई, मतलब लोग जो है वो इसको एज अ मेट्रिक देखते हैं और उसी हिसाब से दुनिया चल रही है। बट अगर आप सच में देखोगे कि आपके कितनी इंगेज्ड कम्युनिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड आप जो पोस्ट कर रहे हो उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज आप ये देखो पर्सनल ब्रांडिंग का रीजन क्या है। नंबर वन, एक फाउंडर और सीईओ के लिए ये होता है कि यार वो मार्केट से ज्यादा पैसा उठा पाए, इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा उठा पाए। दूसरा, अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस पे बेच पाए बिकॉज उसका नाम हम्म हुआ हुआ है। जैसे एलवी का ले लो, लुई विटो, लुई विटो का नाम हुआ हुआ है इस कारण से वो बहुत ही प्रीमियम प्राइस में बिकते हैं, उसका कॉस्ट उतना नहीं बनता है। वही चीज अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन देखूं, जैसे एक पर्सन जो अपना करियर बनाना चाह रहा है, वो अपना ब्रांड क्यों बनाता है? बिकॉज उसका ब्रांड रहेगा तो वो जाके बोल सकता है अपनी कंपनी को कि सी माई थॉट्स आर अप्रिशिएटेड अ लॉट ऑन इंटरनेट एंड दैट्स बिकॉज आई हैव स्टडीड अ लॉट इन दिस सब्जेक्ट। तो वो एक प्रीमियम, एक मार्कअप क्लेम कर सकता है अपनी कंपनी से जब हायर होना चाह रहा है। सो लोग आउटकम नहीं सोचते हैं कि इसका आउटकम क्या है। कितने लोग के पास डिजिटल प्रोडक्ट है इंडिया में जो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं? कितने लोग कंसल्टेशन सच में शुरू करके रखे हैं? सब डिपेंडेंट है ब्रांड कोलैबोरेशन के ऊपर। अरे भैया आज है, ठीक है, आपको हेफ्टी अमाउंट मिल रहा है, बट व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग व्हिच गिव्स यू अ गुड अमाउंट हम्म ऑफ इनकम। सो ये एक बहुत बड़ा फॉलोअर रिलेटेड मिसकंसेप्शन है। और मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में मजा आता है भाई, वो 5,000 फॉलोअर हो गए पोस्ट करने में, 6,000 में पोस्ट करने में, मैं भी करता था। 10,000 के बाद सारा भूत उतर गया, अब लगता है कितना भी पहुंच जाओ, कितना पोस्ट करोगे। करेक्ट करेक्ट। सो लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं आप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी हैं? ट्विटर, ट्विटर यूट्यूब पे नहीं है, बना रखा है, अभी कुछ अपलोड नहीं किया है। हम्म लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके बाद इंस्टाग्राम और फिर ट्विटर। ट्विटर तो भाई आइडियाज के लिए यूज करते हैं, वहां से आइडियाज लेते हैं जो बेस्ट पोस्ट होते हैं और लिंक्डइन पे दे देते हैं। सो दैट्स व्हाट ट्विटर इज बीइंग यूज्ड फॉर। अभी तो थ्रेड्स भी आ गया, थ्रेड्स पे भी है। नहीं, ट्विटर पर काफी खतरनाक जगह है। हाँ ट्विटर यार देखो, क्या बोले, मतलब वो सच सच में देखे तो गोल्ड माइन ट्विटर है। वहां पर तुमको जो हम्म नॉलेज मिलेगा वो लिंक्डइन पे नहीं मिलेगा बॉस। वहां पर क्या थ्रेड्स बनते हैं, और कितनी सुंदर सुंदर ऐसे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, ऐसी मतलब जो तुमको यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। अगर ट्विटर को एक दिन, 2 दिन, 5 दिन लेके छाप दिए पूरा ना एकदम देख के रिसोर्स सारे, तो काम हो गया वहीं तुम्हारा। मैं तो करते रहता हूँ स्क्रैप, कुछ भी रिसोर्सेस मिला उठाते रहता हूँ ट्विटर से। पर थ्रेड्स का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब आई केम टू नो दैट यू हूसएवर डिलीट थ्रेड्स अकाउंट का इंस्टा भी उड़ जाएगा। ऐसा क्या? अच्छा पता सोच नहीं भाई। समझ के करना भाई। नहीं यार वो मैंने तो बनाया नहीं बस भाई। बना दिया उसमें अकाउंट, अब नहीं रहा। हाँ, बात सही है। चलिए, थैंक यू। पॉज हो गया है क्या? हाँ, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग ऑन थी? यस। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। बढ़िया यार, बढ़िया, मजा आया बात थैंक यू करके। सो मच। ऐसे बात हो नहीं पाई, पॉडकास्ट के बहाने हो गई। चलिए योगेश, थैंक यू सो मच।
चलो, for थैंक यू adding सो मच value. बख्तियार फॉर इनवाइटिंग। Thank you ऑल द so वेरी much. बेस्ट। चलो, Okay. ये कहाँ पर जाएगा वैसे, कहाँ पर डालोगे इसको? It will be going on YouTube and I'll be sending you a link. Or परफेक्ट, y- भेज देना। and please follow Yogesh. Subscribe to the channel and follow me. Bye bye, everyone. चलो, बाय बाय।